let us talk about women in politics, or you can say role of women in the field of politics. बच्चों, आपको पता होगा कि most of Indian women have been playing an important role in the field of politics. For example, Indira Gandhi ji, okay, Sushma Swaraj ji, Supriya Sule ji, okay. So these are what Indian leaders, Indian women leaders who have been playing. Okay, latest example is what Sonia Gandhi ji, okay, Mayawati ji, okay. These ladies have been playing an important role in the field of politics. Okay, they are actively playing an important role in the field of politics. Now let us talk about it in short. Okay, huh. uh, just we talked about it. Just I have told you what the participation of women in the field of politics is very in India is very much important. Okay, and is like what disheartening. Okay, India actually India has the lowest number of women representation in parliament, that is only 11% in 16th Lok Sabha elections. Okay, these things also we have to remember. Okay, कि जितना इंडियन वुमेन का पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन चाहिए उतना नहीं, फिर भी जो भी लेडीज़ या जो भी वुमेन पॉलिटिक्स में अपना योगदान दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया और ग्रेट है. ओके, नाउ यदि आप लोग ऐसा after passing the 73rd Amendment Act 1992, the representation of women leaders at the Panchayati Raj system in India is nearly 50%. Okay, or this is a kind of positive thing to women, to women. Okay, you can see this is what is the sign of this? Women empowerment. Okay, ये फिगर्स की तरफ देख के आप हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीमेन में, स्त्रियों में कितना सारा अवेयरनेस आ चुका है. ओके, और बहुत सारे फीमेल्स में तो वीमेन के लिए बहुत सारे वीमेन लीडर्स ने फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए अच्छे से काम किया है. बहुत अच्छा सा काम कर रही है. फीमेल्स राइट्स के लिए झगड़ रही है, वुमेन राइट्स के लिए, और ये एक अच्छी बात है एक्चुअली. लेकिन अभी यहाँ पे ऊपर दिया है आप लोगों को कि फीमेल पार्टिसिपेशन रेट जो है इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स ये जितना चाहिए उतना नहीं है. ओके, देखो जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल was passed in Rajya Sabha, which provides 33% seats to women in parliament. Okay, we are demanding 50%. Okay, यदि 33% भी यदि हम लोग देखेंगे तो वो भी बहुत सारे एरियाज़ में मतलब पार्लियामेंट में, लोकसभा में उतने नंबर नहीं दिखाई देता. ओके, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस. Okay, in some parts of country, okay, lack of awareness, lack of education, especially female illiteracy. Okay, female illiteracy is very much high in most of states, in most of areas in India. Okay, then awareness regarding our rights, lack of awareness regarding female or women's rights, etc. Women participation rate in the field of politics is very much low due to those reasons. Okay, just we talked about it.
women have been playing an important role in the field of politics. Okay, the role and significance of women in the field of politics is stated as below. First is what? Women empowerment, Mahila Sakshmikaran. Okay, empowerment of women in politics means what, बच्चों? Is the participation of women in political decision making process. वुमेन एम्पावरमेंट किसको बोलेंगे हम लोग कि जब फीमेल्स का पॉलिटिक्स में अच्छा सा पार्टीशन रहेगा, ओके, उसके साथ साथ जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, ओके, इफ दे आर एक्टिवली प्रेजेंटिंग देयर व्यूज, आइडियाज, नॉलेज एक्सेट्रा इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ओके, दिस इज व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट. तो ही हम लोग बोल सकेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट इज देयर. ओके, टुडे देर आर good numbers of women at top positions in political parties. Okay, you can have more examples, है ना, जैसे कि मिसेस सोनिया गांधी is the chairperson of Congress party in India. Okay, then स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी. ओके, देन मायावती जी, प्रतिभाताई पाटिल, प्रतिभाताई देवी सिंह पाटिल. ओके, शी वाज व्हाट? फर्स्ट president of India, female president of India. Okay, in that way. The elected women representatives may actively work for women empowerment in the society. Okay, यदि ज़्यादा से ज़्यादा women representation लोकसभा में, राज्यसभा में यदि पाया जाता है, ओके, या तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यदि पॉलिटिक्स में आती हैं, ओके, तो जो महिलाओं के जो प्रश्न हैं, ओके, प्रॉब्लम्स रिलेटेड डावरी वगैरह, ऐसे कुछ जो सोशल इश्यूज़ हैं ऑफ वुमेन, तो वो सॉल्व होने में बहुत बड़ी मदद हो सकती है, क्योंकि महिलाओं की प्रॉब्लम्स जो है वो एक महिला ही अच्छी तरह से जान सकती है, समझ सकती है. और उससे क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सोशल इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू वुमेन, तो बहुत सारे इश्यूज़ सॉल्व होने में मदद हो सकती है बच्चों. देन पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन. ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द वुमेन इन इंडिया आर अवेयर ऑफ देयर पॉलिटिकल राइट्स. ये बहुत अच्छी बात है. ओके, एंड उससे क्या हो रहा है कि उनमें जब अवेयरनेस आ रहा है आहिस्ते आहिस्ते, इंडियन वुमेन में पॉलिटिक्स के प्रति, ओके, या तो इंडियन पॉलिटिक्स के प्रति एक अच्छी जानकारी उनको मिल रही है. ओके, और क्या मतलब पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से अपना कार्य कर रही है. ओके, इसके बारे में भी इंडियन वुमेन में अभी अवेयरनेस आ रहा है. दे वांट टू नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स. ओके, व्हाट इज़ देयर मीन्स व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, ओके, इन द सोसाइटी. ये भी उनमें अच्छा सा एक अवेयरनेस आ रहा है. एंड दे आर टेकिंग पार्ट, दे आर ट्राइंग टू टेक पार्ट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स. ओके, और वो चाहते हैं कि जब हम मतलब महिलाएं यदि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, ओके, एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग और मजबूत यदि रिप्रेजेंटेशन यदि खड़ा करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यदि खड़ा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो जो इंडिया की जो बहुत सारी इश्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होने में मदद होगी. Now what are the political rights of women? Okay, political rights क्या है women के देखते हैं. Women shall be entitled to vote in all elections. Okay, then women are eligible for elections
to all publicly elected bodies established by the nation. Then women are entitled to be hold public office and to exercise all public functions in equal terms with men without discrimination. If there is any kind of discrimination, then strict action will be taken against. Okay. Now, political education and training. बच्चों, women in politics may act as a role models for prospective women to join politics in India, है ना. फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी जी. ओके. जब हम लोग इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ रीड करते हैं उनकी, या उनकी कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं बड़े बुजुर्ग से, तो हमें भी ऐसा लगता है कि मुझे भी थोड़ा बहुत उनके जैसा बनना चाहिए. उन्होंने जो जो पॉलिसीज़ अपनाई थी उन पॉलिसीज़ को अपनाना चाहिए वगैरह वगैरह. ओके. बिकॉज इंदिरा गांधी जी इज़ लाइक रोल मॉडल, ओके, टू इंडियन वुमेन. Then Sushma Swaraj ji and other you can have so many examples. Okay. Act as effective role models for these women. Okay. Political education and training is very important for joining politics to women. Political education and training is very important for women for joining politics. ओके. और आजकल कुछ कोर्सेज भी शुरू हो गए हैं विच आर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. ओके. तो इसके ज़रिए हम लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब एक अवेयरनेस आ सकता है और मेंस भी एनकरेज हो सकते हैं. ओके. और वो अपनी मतलब अपनी मम्मी या अपनी बेटी या बहू वाइफ को उस दिशा में वो एनकरेज करके वो पॉलिटिक्स में अपने घर की बहू ने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए. इसके लिए फिर वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं. ओके. एंड इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ वे टू हैव women empowerment. Understood? Then the aspects of education and training may include knowledge in political science. जो political science जो होता है उसके बारे में अच्छा सा नॉलेज दिया जाता है. देन करंट अफेयर्स क्या क्या है, ओके, इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है. देन लॉ में क्या दिया है, व्हाट इज़ देयर इन लॉ. ओके. तो फिर लॉ में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फीमेल मीन्स व्हाट आर द मेजर राइट्स. ओके. दे कैन प्रोटेक्ट women's rights. What are the major laws, what are the major what are the legislative measures that could protect women's right. तो इसके बारे में ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आता है, नॉलेज मिलता है थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पॉलिटिक्स. ओके. देन फोर्थ वन इज व्हाट, resolving women related social problem. Just we talked about it. ओके. जब महिलाएं यदि लोकसभा में, राज्यसभा में, ओके, इवन जो न्यायालयीन व्यवस्था है उसमें यदि महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट यदि बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली व्हाट वुड हैपन कि जो विमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ओके, तो वो कंट्रोल में आ सकते हैं. बहुत सारे प्रॉब्लम्स मीन्स विच आर रिलेटेड टू वुमेन, ओके, सॉल्व हो सकते हैं. देन वुमेन अपलिफ्टमेंट. ओके. तो देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि इंडिया इज़ हैविंग पैट्रियार्कल सिस्टम. पैट्रियार्कल सिस्टम इज़ व्हाट, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. ओके. तो ऐसे हालत में क्या होता है बच्चों कि देर इज़ लोअर स्टेटस टू वुमेन. ओके. वुमेन स्टेटस कैसा है, लोअर है. ओके. तो देर आर number of restrictions on women. ओके. जैसे restrictions on participation in religious rituals. ओके.
मतलब जो भी रिलीजियस अपने कुछ क्रिया या कर्म होते हैं उसमें सिर्फ मेंस को ही अलाउ किया जाता है, फीमेल्स आर नॉट अलाउड फॉर दैट। ओके, मतलब ऐसा कुछ एक ढांचा ही बना दिया है सोसाइटी ने कि ये काम सिर्फ लड़के करेंगे, ये काम सिर्फ मेंस करेंगे, मेल्स करेंगे। ओके, और ये काम महिलाएं नहीं कर सकती है इन दैट वे। ओके, तो रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो चाह के भी अ, मतलब अपने पसंदीदा फील्ड में नहीं जा सकती, चाहे वो पॉलिटिक्स क्यों ना हो। ओके, तो इसके लिए क्या होता है कि जब मैंने कहा आप लोगों को कि जब कोई विमेन मतलब कि जिसको हम लोग पॉलिटिकल लीडर बोलेंगे, विमेन पॉलिटिकल लीडर यदि है, वुमेन लीडर यदि है, ओके, या तो वुमेन पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है पॉलिटिक्स में, एटलीस्ट 33%, एटलीस्ट 50%। ओके, तो ऑटोमेटिकली व्हाट वुड हैपन कि बहुत सारे वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो सकते हैं। और दूसरी बात कि विमेन जो है, विमेन पॉलिटिकल लीडर्स, वो लोग क्या कर सकते हैं और कि कुछ ऐसे स्पेशल लेजिस्लेशंस है क्या, स्पेशल कि जो विमेन को अपने राइट्स दिलाने में मदद कर सकेगी। यदि ऐसे कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स नहीं हैं, ओके, तो फिर वो जो विमेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं तो वो उस दिशा में कार्य कर सकती है। ओके, और उससे ऑटोमेटिकली व्हाट वुड हैपन, वुमेन अपलिफ्टमेंट। ओके, वुमेन अपलिफ्टमेंट मतलब क्या बच्चों कि जहाँ पे मतलब फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं और वुमेन को एक अच्छा सा स्टेटस मिलता है। ओके, तो दैट इज़ व्हाट इज़ वुमेन अपलिफ्टमेंट। वुमेन अपलिफ्टमेंट मीन्स व्हाट बच्चों, empowering women. Okay, empowering of women, it could be gain or achieve in several ways, including accepting women's viewpoints or making an effort to seek them, raising the status of women in the society, raising the status of women in the field of education. Okay, and for that awareness is very important. Okay, then women's empowerment or upliftment equips and allows women to make life determining decisions through through which she can solve different kind of problems in the society. Okay, so this is what is women upliftment. Okay, तो पॉलिटिकल सॉरी विमेन पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं बच्चों कि विमेन का सोसाइटी में स्टेटस किस तरह से बढ़ेगा। ओके, विमेन अपलिफ्टमेंट किस तरह से हो पाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट किस तरह से ये जो गोल है ये किस तरह से अचीव हो पाएगा, इसकी इस दिशा में विमेन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो प्रयत्न करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। और उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एक जो सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी का जो ढांचा है वुड बी चेंज। ओके, एंड फॉर दैट उसके लिए फीमेल्स का पॉलिटिकल फील्ड में ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड? Here we have finished 5th unit also. Okay.